لوڈ شیڈنگ بچوں کی نفسیات پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس بارے میں اساتذہ کا کیا کہنا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ بچوں کے لیے بہت پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ بجلی نہیں آتی ہے۔ جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے تھکے ہوئے جاتے ہیں گرمی سے، اور پھر گھر جا کے وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، بجلی نہیں ہے تو ایئر کنڈیشنر، فینز نہیں آن ہو رہے، دین دے ٹرائنگ ٹو سلیپ، اینڈ اف دے کانٹ سلیپ دے وانٹ سم انٹرٹینمنٹ۔ اور جب ٹی ویز آن کرتے ہیں تو ٹی وی پہ بھی کچھ نہیں آ رہا، آن ہو ہی نہیں رہے ٹی ویز، لیپ ٹاپس بھی چارج نہیں ہو رہے، تو بچے کافی اس سے بور بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر جب انہیں پڑھنے بٹھا دیتے ہیں زبردستی تو کہتے ہیں کہ پنکھے نہیں چل رہے، ہم نہیں پڑھیں گے، لائٹ ڈم ہے، اگر یو پی ایس پہ لائٹ جل بھی جاتی ہے تو ڈم لائٹس ہیں بہت، کہتے ہیں وی کانٹ اسٹڈی ان دیٹ انوائرمنٹ، تو کافی وہ پرابلم بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ اسکول آتی ہیں، جی الیکٹریسٹی کے اتنے مسائل ہیں، آپ جی بچوں میں کیا دیکھتی ہیں؟ وہ مسائل جو باہر آپ دیکھ رہی ہیں اپنے گھر میں الیکٹریسٹی کے، جی وہ جی بچوں میں آپ دیکھتی ہیں، محسوس کرتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، بچے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اسکول میں بالکل وہ ایک ان کا ایک لیزی بیہیویئر ہوتا ہے، بالکل پڑھائی کی طرف جیسے اس کو نیند آ رہی ہے، اور مطلب ڈیورنگ لیکچر بھی وہ پراپر وہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے اپنی اس پہ نا۔ اچھا، تو وہ جو ٹائم وہ ان کا گھر میں ان کا ریسٹ کرنے کا ہوتا ہے جس میں وہ ان کا وہ پورا نہیں ہوتا، وہ پھر اسکول میں آ کے وہ بہت زیادہ ان کا وہ ڈسٹربنس ہی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا سروے جو 100% تک ایک ہی قسم کا نتیجہ لایا، ایس آئی ڈی ٹیم کی جانب سے کیے جانے والا یہ سروے حیرت انگیز نتائج سامنے لایا۔ دیکھیے بریک کے بعد۔ ثانیہ ریاض بیچلر آف سائنس کے امتحانات کی پوزیشن ہولڈر ہیں۔ ایس آئی ڈی ٹیم ممبر امبر قریشی نے ثانیہ سے پوچھا، آپ نے اتنے اچھے نمبرز لیے ہیں تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا اتنی اسٹڈیز کو اچھی طرح پرفارم کرنا مشکل نہیں ہو گیا تھا آپ کے لیے؟ بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑی تھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اور ان دنوں تو ویسے بھی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ تھی، اور بہت مطلب کہ جس وقت ایک تو میری روٹین بھی نائٹ میں پڑھنے کی تھی، اور جب بھی مطلب پڑھنے بیٹھو تو ایک دم سے لائٹ چلی جاتی تھی، اور پھر مطلب اگر کوئی روٹین بن بھی رہی ہے پڑھنے کی نہیں پڑھ پاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ موبائل کی ٹارچ لائٹ سے وہ میں نے رکھی ہوئی تھی، اس کے تھرو جو ہے وہ میں پڑھتی تھی، کیونکہ لگن تھی پڑھنے کی، جذبہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ نے مطلب کسر نہیں چھوڑی، کہ انہوں نے اپنی روٹین جاری رکھی ہے۔ ہم اسٹوڈنٹس کو اتنی زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑی ہیں، جب بھی ہم پڑھنے بیٹھتے تھے لائٹ چلی گئی اور پھر ٹارچ لائٹس کے تھرو پڑھو، اور پھر اس کے آپ کو پتہ ہے کہ ٹارچ لائٹ سے پڑھنے سے سر میں اتنی پین ہوتی ہے، آئی سائٹ بھی اتنی ویک ہو جاتی ہے، میری خود آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہو گئی تھی اسی وجہ سے۔ مسز نتالیہ قزلباش ہیں ایک ماہر تعلیم۔ ایس آئی ڈی ٹیم ممبر رفیع جمال سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے بچوں پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں بات کی۔ اگر 2-3 گھنٹے بجلی چلی جائے، جو کہ پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہے ایسے ہی ہو رہا تھا، رات رات بجلی نہیں ہے، 3-3 4-4 گھنٹے ایٹ اسٹریچ بجلی نہیں ہے، تو چھوٹے بچے انفیکٹ آل کڈس جب ان کو ان کی نیند پوری نہیں ہوگی، وہ کس طریقے سے اگلے دن اپنی کلاسز کے لیے الرٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کو اسکول میں جتنا مرضی پڑھا لیں گے، جتنا مرضی سکھا لیں گے، جب وہ مائنڈ وائز الرٹ ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیا گراسپ کریں گے، یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ دوسرا، سینئر لیول پہ آپ کے بچوں کا دیر از اے لاٹ آف ریسرچ ورک، اسکول میں دیر از کمپیوٹر فیسلٹی، بٹ فار ہاؤ لانگ، وین دے گو ہوم ایٹ 1 o'clock واٹ ہیپنس دین؟ گھر میں جب بجلی ہو، اگر وہ اور انہوں نے اپنے ہوم ورک کرنے ہیں، انہوں نے اپنے اور کام کرنے ہیں، دے نیڈ ریکریشن، دے نیڈ ریسرچ ورک، جس کے لیے آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی ود دا ہائی ٹیکنالوجی دیٹ وی ہیو، الیکٹریسٹی ضروری ہے ہر چیز کے لیے، ہر چیز الیکٹریسٹی سے چلتی ہے، سو آبویسلی اس میں بھی ان کو پرابلمز ہوں گی۔ امبر قریشی نے بات کی ایک ہاؤس وائف سے جو بجلی کی عدم دستیابی کے باعث پسینے میں شرابور تھیں۔ بہت مشکل ہوتی ہے، دوپہر بچے آتے ہیں اس وقت لائٹ نہیں ہے، پڑھنے کا مسئلہ، ان کے ٹیوشن جانے کا مسئلہ کہ لائٹ کی وجہ سے نہیں جا سکتے، شام دیکھ لے پھر لائٹ نہیں ہے، کھانے پکانے کا مسئلہ ہے، کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، کوئی فنکشن ہے، بالکل کوئی روٹین ہے ہی نہیں لائٹ کی۔ ٹیم ایس آئی ڈی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا وہ سروے جو ہم نوجوان نسل کو لے کر رہے ہیں اس لوڈ شیڈنگ سے ان کے ذہنوں پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں، وہ بھی جاری ہے اور ہم بہت جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ مگر مجھے یہ بتائیے کہ اس دوران جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اس کو لے کر آپ کے کیا تاثرات و خیالات ہیں؟ سر زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ بہت سے مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں۔
फैसलाबाद की इंडस्ट्री बांग्लादेश जा रही है और रही सही इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो रही है क्योंकि वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है। यानी सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा पंजाब है। सर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस कदर बढ़ चुका है कि हर आदमी अंदर से टूट फूट का शिकार नजर आता है। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसे डर है कि अगले ही लम्हे या अगले ही रोज उसे नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। सर, हर तरह की इंडस्ट्री डाउन साइजिंग कर रही है। एग्जैक्टली, और इसकी वजह भी लोड शेडिंग है। पाकिस्तान साउथ एशिया के ममालिक की उस फहरिस्त से खारिज हो चुका है जो खित्ते में मुआशी मजबूती का बायस बन सकते थे, और इसकी वजह भी यही मसला है। रफ़ी, हमारे उस सर्वे का स्टेटस क्या है जो हम कर रहे हैं? सर, उसके नताइज हमें जल्द ही मिल जाएंगे। हमने हर तबका फ़िक्र के नौजवानों को लूप में रखा है इस सर्वे के लिए, और उम्मीद है ये कामयाब रहेगा और हुकूमती हलकों के लिए भी कारआमद साबित होगा। सर, इस सर्वे के लिए जो सवालात वजह किए गए हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, और अच्छी बात ये है कि हमारी फील्ड में इस काविश को काफ़ी सराहा गया है। जल्द ही हम पर काफ़ी सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। गुड, कोशिश करें कि जिस कदर जल्दी मुमकिन हो सके हम किसी नतीजे पर पहुंचें। नाउ दिस मीटिंग इज ओवर। हम बात कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग से मुतासिर होने वाली एक पूरी नस्ल की। आज की ये पाकिस्तानी नस्ल बदल रही है। एनर्जी क्राइसिस और खास तौर पर बिजली की लोड शेडिंग ने इस पूरी नस्ल को एक खास तरह की कैफियत से दोचार कर दिया है। जो लोग इस वक्त काम करते हैं, अगर वो दिन में 10-12 घंटे मेहनत करते हैं, तो ये एक इंसान की ज़रूरत है कि शाम को या रात को 6 से 8 घंटे वो अगर नींद पूरी नहीं करता तो उसकी जो तवानाई है, उसका जो जिस्म है, उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो रिचार्ज नहीं होती। और जब लोग रात को घर पे आके लोड शेडिंग की वजह से सो नहीं सकते या उनकी नींद का साइकिल डिसरप्ट होता है, तो आप देखिए उससे हमारे सोसाइटी के अंदर लोगों में अदम बर्दाश्त पैदा हो रहा है। उनकी नींद पूरी ना होने की वजह से उनके जो बिहेवियर है उसमें तब्दीली आ रही है, एक हिजान आ रहा है, एक टेंशन आ रही है, इनटॉलरेंस आ रही है, घरों के अंदर इनटॉलरेंस आ रही है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटॉलरेंट हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है कि वो लोग एंग्जाइटी का शिकार हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अवाम की ज़हनी सलाहियतों का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। क्या हुकूमत के पेश नज़र ये मसला अहम है? वो क्या सोच रहे हैं? हालात को देखते हुए तो कहा जा सकता है उनका जवाब है नहीं। तो फिर पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा? नौजवान हैं वैसे भी बेरोज़गार हो गए कि लोड शेडिंग के अपने बहुत सारे समरात हैं, क्योंकि एक जो ख़राबी है वो बहुत सारी ख़राबियों को जन्म देती है। लोड शेडिंग एक अजाब नहीं है, उसके हवाले से कई अजाब जन्म ले रहे हैं। बेरोज़गारी है, मिलने बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, महंगाई रोज़ रोज़ बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल की कीमत उसके साथ ही बढ़ जाती है और CNG कीमत बढ़ती है, उसके साथ ही महंगाई का एक और सैलाब आ जाता है। SID टीम की जानिब से किए गए सर्वे में सिर्फ 5 सवालात पूछे गए थे और उम्र के हवाले से 3 कैटेगरीज बनाई गई थी। पहली कैटेगरी थी 10 से 20 साल के अफराद और दूसरी कैटेगरी में थे 20 से 30 साल की उम्र के अफराद और तीसरी कैटेगरी थी 30 से 40 साल की उम्र के लोग। सर्वे में पूछे गए सवालात थे कि क्या बिजली की लोड शेडिंग ने आपकी नफ्सियात पर असर डाला है? क्या आपकी जिस्मानी और ज़हनी कारकर्दगी को बिजली की लोड शेडिंग ने मुतासिर किया है? क्या बिजली की लोड शेडिंग आपके अंदर गुस्से, इंतशार और ज़हनी दबाव को बढ़ावा दे रही है? क्या आपके घर में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से झगड़े बढ़ गए हैं? और क्या आप इस लोड शेडिंग की वजह से अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते? ये 5 सवालात थे इस सर्वे का हिस्सा और इससे जो नताइज मिले वो कुछ यूं हैं। 10 से 20 साल की उम्र के अफराद में से 100% ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग उनकी नफ्सियात पर असर अंदाज है। 90% ने कहा ज़हनी और जिस्मानी कारकर्दगी दोनों लोड शेडिंग से मुतासिर हो रहे हैं। 8% ने कहा ज़हनी और 2% ने जिस्मानी कारकर्दगी। 98% का ख्याल था कि लोड शेडिंग उनके अंदर ज़हनी तनाव और इंतशार का सबब बन रही है। 89% अपने घरेलू झगड़ों की वजह लोड शेडिंग को करार दे रहे थे। 9% का ख्याल था कि उन्हें पता नहीं कि घरेलू झगड़े लोड शेडिंग की वजह से हैं या नहीं।
100% का ख्याल था कि लोड शेडिंग की वजह से वो काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। 20 से 30 साल की उम्र के 100% अफराद का ख्याल था कि लोड शेडिंग उनकी नफ्सियात पर असर अंदाज है। 70% कहते हैं उनकी जहनी और जिस्मानी कारकर्दगी लोड शेडिंग से मुतासिर है। लोड शेडिंग के बायस गुस्से और जहनी तनाव का शिकार 100%, 98% का ख्याल था कि घरेलू झगड़े लोड शेडिंग के बायस बढ़ चुके हैं। 100% कहते हैं कि हम इसकी वजह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लोड शेडिंग 95% लोगों की नफ्सियात पर असरअंदाज, 80% अफराद की जहनी और जिस्मानी कारकर्दगी लोड शेडिंग से मुतासिर, 86% कहते हैं इसकी वजह से घरेलू झगड़े बढ़ गए। 98% का ख्याल है कि वो लोड शेडिंग की वजह से काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। टीम एसआईडी, इस सर्वे ने मुझे खासा फिक्रमंद कर दिया है। 100%, 100% लोग एक ही बात पर मुत्तफिक हैं कि बिजली की इस लोड शेडिंग ने उनकी नफ्सियात पर बहुत बुरा असर डाला है और इन हालात में हमारी एक पूरी नस्ल को संगीन खतरात लाहक है। सर, लोगों के माहौल, उनकी जहनी कारकर्दगी और जिस्मानी हालत का ज़ेरो ज़बर होना बता रहा है कि हमारी सोसाइटी टूट फूट का शिकार है। लेकिन अभी चूंकि लोग आगाह हैं इस बात से, तो इस शिकस्त रेख के अमल को रोका जा सकता है। सर, लोड शेडिंग का लोगों के जहनों पर ये इम्पैक्ट काफ़ी हैरत अंगेज़ है। ऐसा रियलिटी में तो नहीं सुना था, हॉलीवुड में ब्रेन वॉशिंग के मौजू पर बनने वाली फिल्मों में ही देखा था। ये लोड शेडिंग लोगों को इस हद तक मुतासिर कर सकती है। मेरे नज़दीक तो इस सर्वे का नतीजा काफ़ी फिक्र अंगेज़ है। सर, इस बारे में मैंने भी कुछ बच्चों से बात की है। जब वो लोड शेडिंग के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं तो उन पर तरस आता है। इतनी छोटी सी उम्र में वो इतने बड़े मसाइल से दो चार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सर उनके बस में कुछ नहीं। मगर तारक, जिनके बस में है वो क्या कर रहे हैं? हर बात पर लड़ रहे हैं, हर बात पर सियासत में मसरूफ़ हैं। अगर वो यही वक्त थोड़ा सा आवाम के मसाइल को दे दें तो शायद ये मसला उनके सामने आ जाए। सर, ये एक ऐसा मसला है जिससे मुआशरे का हर तबका मुतासिर हो रहा है। खिलाड़ी हो, दुकानदार हो या कोई और शख्स, लोगों के 80% मसाइल की वजह और जड़ लोड शेडिंग है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इस काविश का खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा और हमारे सोए हुए सियासतदानों के दरवाज़ों पर एक दस्तक ज़रूर होगी और उन्हें ये एहसास होगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारी पूरी कौम और ख़ुसूसन आज की इस नौजवान नस्ल की नफ्सियात पर कितना गहरा और मनफी असर हो रहा और वो ना चाहते हुए भी जुर्म करने की ख्वाहिश कर बैठते हैं। हम मजमूई तौर पर एक जज्बाती कौम बनते जा रहे हैं। अगर फौरी तौर पर बिजली की इस लोड शेडिंग को खत्म करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया तो लोगों के अंदर पकता हुआ लावा बाहर निकल आएगा, जो कि बहुत ही संगीन होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को एक खूबसूरत और बेहतर पाकिस्तान देना चाहते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी इस काविश का मुस्बत और बेहतर नतीजा निकले। टीम एसआईडी, वेल डन। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है और एसआईडी आपको तस्वीर का हर रुख दिखाएगी। हम बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जिसमें बिजली के इस बहरान का हल पेश किया जाएगा, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि बिजली का ये बहरान कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और ये किस तरह खत्म होगा। याद रखिए, बिजली की लोड शेडिंग भी एक जुर्म है और जब बात होगी जुर्म की, तहकीक करेगी टीम एसआईडी।